Hello class 8th. Today we are going to start a new chapter and it is a chemistry chapter, chapter number 6, combustion and flame. First of all, I will like to tell you what is combustion. Combustion means burning. So you must have observed burning of paper, wood, coal or LPG in the kitchen and even plastics also. So when they burn, they give us heat and light, yes or no? Yes, they give us heat and light. But do all materials give us heat and light? Or do all materials burn in the same way? That we can understand if we see this table. Like if you talk about paper, does it burn? Yes, it burns. Is there a flame? Yes, flame is also there. Same happens with wood. It burns and it has got a flame. But what happens with iron nails? Does it burn? No, iron nail does not burn and it does not have a flame. What happens with dried leaf and cotton cloth? They also burn and they also have a flame. But what happens to stone? Does it burn? No, it does not burn. Similarly, wick dipped in kerosene and wick dipped in cooking oil, they burn with a flame. So there are some substances which burn with a flame. Those substances which burn with a flame are called inflammable substances combustible substances. And those substances which do not burn in air or in oxygen, they are called non-combustible substance. So now we can define combustion as the process of burning of substances in air or oxygen with the evolution of heat and light is known as combustion. तो अभी आपको ये समझ आया combustible substance क्या है और non-combustible substance क्या है. Combustible substance जैसे पेपर, वुड, केरोसिन एंड एलपीजी जो बर्न करते हैं एयर में और बर्न होने के बाद जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. मगर कुछ सब्सटेंसेस जो बर्न नहीं करते और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऐसे सब्सटेंस जैसे स्टोन या मेटल, इनको हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं. सो कंबस्शन इज एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन and during this chemical reaction there is liberation of energy. And what happens in this chemical reaction? The combustible substance, it combines with oxygen and it liberates energy in the form of heat and light. Now if we talk about few examples of combustion, so we can see mostly जो fuels होते हैं जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल, वुड, पेपर, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. अगर हाइड्रोकार्बन इट बर्न्स कम्प्लीटली, व्हेन अ हाइड्रोकार्बन बर्न्स कम्प्लीटली, then the products formed are carbon dioxide and water, and this is called complete combustion. This is called complete combustion. complete combustion का मतलब है, जैसे आप ये एक रिएक्शन देख रहे हैं, जैसे मीथेन है CH4, इसको अगर हम सफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दें, मतलब सफिशेंट एयर दें या सफिशेंट ऑक्सीजन दें रिएक्ट करने के लिए या बर्न करने के लिए, तो उसके जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी. सो कंप्लीट कंबशन में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. मगर अगर हम इसी मीथेन को ज़रा कम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दें या सफिशेंट ऑक्सीजन ना दें, तो क्या होता है, मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ना बना के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है. और वाटर तो बनता ही है, एनर्जी तो बनती है, बट द डिफरेंस इज कार्बन मोनोऑक्साइड. एंड यू ऑल नो इनकम्प्लीट कंबशन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, दैट इज़ अ पॉइजनस गैस एंड इट कैन अफेक्ट, इट इज़ जस्ट लाइक अ पोल्यूटेंट इन द एयर, और वो हमारी ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करती है. सो these are two types of combustion we have studied just now.
complete combustion and incomplete combustion. Now we will study about the conditions necessary for combustion. कंबशन के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं और वो कंडीशंस क्या हैं उनको हम इस एक्टिविटी में देख सकते हैं, हम इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें हमने 2 कैंडल्स बर्न करी हैं और एक को हमने कवर कर दिया है ग्लास टम्बलर से. थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ग्लास टम्बलर में जो कवर्ड कैंडल है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है और वो द फ्लेम फ्लेम ख़त्म हो जाती है उसकी. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो ऑक्सीजन है, जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है रुक जाती है जब हम उसको किसी टम्बलर से उसको हम कवर कर देते हैं. अगर किसी टम्बलर से तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है. जितनी ऑक्सीजन सप्लाई उस टम्बलर के अंदर होती है, जब तक ऑक्सीजन रहती है तब तक वो फ्लेम जलती है और जैसे ही ऑक्सीजन वहाँ की ख़त्म हो जाती है तो वो एक्सटिंग्विश हो जाती है. उसी तरह हम दूसरा एक एक्सपेरिमेंट इसमें है कि एक आप मैच स्टिक लीजिए, उसको स्ट्राइक करिए तो क्या होता है, मैच स्टिक जल जाती है और फिर उसी मैच स्टिक से अगर किसी पेपर को हम बर्न करने की कोशिश करते हैं तो पेपर भी जलने लगता है. इसी तरह अगर हम एलपीजी गैस आपने देखा होगा, आप लाइटर यूज़ करते हो या मैच स्टिक यूज़ करते हो, जैसे ही आपने एलपीजी गैस स्टोव ऑन किया वैसे ही और मैच स्टिक उस पास रखी वैसे ही वो जलने लगता है. इसी तरह आप वुड और कोल को भी यूज़ कर सकते हो बर्न करने के लिए, लेकिन उसी बर्निंग मैच स्टिक से. तो क्या हम देखते हैं, क्या वो तुरंत बर्न करने लगता है? नहीं, वो तुरंत बर्न नहीं करने लगता, उसको टाइम लगता है. पहले वो गर्म होगा, उसके बाद वो बर्न्स करना स्टार्ट हो जाता है. तो इससे हमें ये पता चलता है, इन ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चलता है कि बर्निंग डज नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर. यानी कि अगर ऑक्सीजन नहीं है बर्निंग नहीं होगी. इसका मतलब ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंबशन. दूसरा ऑब्जर्वेशन से हमको पता चलता है कि that to start burning the combustible substance must be heated to above a certain temperature. मतलब एक certain temperature से ज़्यादा उसको हीट करना ही पड़ता है तभी वो बर्न करना स्टार्ट करेगा. और वो certain temperature होता है उसका lowest temperature at which a combustible substance starts burning. और इसका combustible substance जिस minimum temperature पे बर्न करना स्टार्ट करता है उसको हम बोलते हैं ignition टेम्परेचर. यानी कि दूसरी कंडीशन बर्निंग की क्या हो गई कि वो जो सब्सटेंस है जिसको हमें जलाना है या फ्यूल जो हमें बर्न करना है वो तब तक नहीं बर्न होगा जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर ना पहुंच पाए. अब आता है अच्छा, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग होते हैं. सो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर्स. तो ज़रूरी नहीं है कि जिस टेम्परेचर पे पेपर बर्न हो उसी टेम्परेचर पे कोल भी बर्न हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. कोल के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, पेपर के लिए हमें कम हीट देनी पड़ेगी. देन जैसे कि हम मैच स्टिक से अगर हम कोशिश करें एक पीस ऑफ वुड जलाने की या एक कैन फुल ऑफ केरोसिन जलाने की, तो कौन सी चीज़ बहुत जल्दी जलेगी और तेज़ी से जल जाएगी? वो है हमारी केरोसिन. मगर वुड उतनी तेज़ी से नहीं जलेगी. वाई? बिकॉज केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है और वुड का टेम्परेचर केरोसिन के रिस्पेक्ट में हाई है. सो हम क्या समझ सकते हैं कि जो कंडीशंस नेसेसरी है कंबशन के लिए वो क्या क्या है? प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, नंबर 1. Number 2, presence of supporter of combustion, that is oxygen gas. Number 3, heating the combustible substance to its ignition temperature. जब तक ignition temperature नहीं आएगा तब तक वो burning नहीं होगी. तो ये 3 conditions are very very necessary for the combustion to take place. अगर एक भी चीज़ इसमें मिसिंग होगी combustion नहीं होगा. अब हम एक दूसरी एक्टिविटी को पढ़ते हैं. इस एक्टिविटी में हम देख रहे हैं कि हमने 2 पेपर कप्स लिए हैं और पेपर कप्स पहले हमने बनाए हैं बाय फोल्डिंग शीट्स ऑफ पेपर और एक को हमने हाफ फिल कर दिया वाटर से और एक को ऐसे ही रहने दिया और दोनों के नीचे एक बर्निंग कैंडल रख दी. दोनों को हमने हीट करना स्टार्ट किया. तो हम क्या देखेंगे, कौन सा कप बर्न करने लगेगा?
हमारा पेपर कप जिसमें पानी नहीं है, लेकिन जिसमें पानी है उसमें क्या होगा, द वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, मगर पेपर कप में के पेपर में आग नहीं लगेगी। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्योंकि इसमें पानी है, सारा हीट जो आप कैंडल से दे रहे हो पेपर को, वो सारा हीट कहाँ चला जाएगा, वाटर में, और पेपर अपने इग्निशन टेम्परेचर पे आ ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से जो पेपर कप है वो फायर कैच करेगा ही नहीं या बर्न करेगा ही नहीं। मगर दूसरे केस में क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वाटर है, इस वाटर नहीं है, इसलिए जो पेपर कप है वो अपने धीरे धीरे जो हम हीट दे रहे हैं कैंडल से, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को अपने इग्निशन टेम्परेचर पर रीच कर जाएगा एंड देन इट विल स्टार्ट बर्निंग. So I hope you understand this. Now let us go to the inflammable substance. Inflammable substance हम उनको कहते हैं जिनका ignition temperature बहुत ही कम होता है, very low, and hence they can catch fire very easily. जैसे for example पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, एलपीजी, इनको बहुत संभाल के हमें रखना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सी अगर हीट, एक स्पार्क भी अगर इनको मिलता है, they can ignite them and it can cause a major fire. इसलिए ऐसी चीज़ों को हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं. आपने देखा होगा कई बार कॉशन लिखा रहता है कैरिंग व्हीकल्स में, जो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कैरी करके ले जा रहे होते हैं, ट्रक्स वगैरह, तो उसमें लिखा रहता है कि इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, तो आप थोड़ा दूर होके चलते हैं. सो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस को बहुत ही ध्यान से हमको कैरी भी करना होता है और रखना भी होता है. अब आता है टाइप्स ऑफ कम्बशन. There are three types of combustion. One is rapid combustion, second is spontaneous combustion, and third is explosion. तो फर्स्ट वील स्टडी अबाउट रैपिड कम्बशन. जैसे कि अभी एक्टिविटी 2 में आपने देखा कि एक मैच स्टिक से हमने एक पीस ऑफ पेपर को जलाया, या फिर हमने एलपीजी जो किचन में होता है उसको बर्न किया, तो वो रैपिडली, बहुत जल्दी से वो जलने लगते हैं. इस तरह के कम्बशन को, जिसको थोड़ी सी हीट में वो जलने लगते हैं, उनको हम बोलते हैं रैपिड कम्बशन. कुछ ऐसे होते हैं कुछ कम्बशन ऐसे होते हैं, जिसका एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगी. ये होता है वाइट फॉस्फोरस. एक एलिमेंट है और इसका इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम है. तो जैसे ही कुछ, अगर मान लीजिए कि हमारे रूम का टेम्परेचर 36 हो गया गर्मी में या समर्स के टाइम पर, तो ये वाइट फॉस्फोरस जो है वो अपने आप जलने लगेगा. इसको हमें एक्स्ट्रा हीट देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप वो एटमॉस्फेयर की हीट से ही वो जलने लगेगा. तो ऐसा कम्बशन जिसमें हमको कोई भी हीट अप्लाई किए बिना कोई चीज़ जलने लगे, फ्लेम्स में जलने लगे, ऐसे कम्बशन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन. और उसका एग्जाम्पल वाइट फॉस्फोरस का बर्निंग है. देन थर्ड इज़ फायर क्रैकर. जैसे आप फायर क्रैकर देखते हो, फायर क्रैकर जैसे ही आप बर्न करते हो, इट एक्सप्लोड्स, इट गिव्स अ लॉट ऑफ साउंड, लॉट ऑफ हीट एंड लॉट ऑफ लाइट. So this type of combustion in which there is an explosion of energy, there is an explosion of lot of large amount of gas and reaction. Such a reaction is called explosion, या उस combustion को हम बोलते हैं explosion. Now we are coming to the last part of this video, and that is extinguishing a fire. For example, there is a fire at a place. So there are you can do three things to put the fire off. First is the first thing is that you have to remove the conditions. 3 conditions हमने पढ़ी हैं, जो conditions हमको चाहिए होती हैं for the combustion. पहली condition है combustible substance का होना. तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, रिमूवल ऑफ combustible substance. अगर कोई combustible substance है, आपको दिख रहा है, उसको आप हटा दो तो फायर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी. मगर ये तब पॉसिबल नहीं है जब हम किसी कहीं पर बड़ी बिल्डिंग पे आग लग गई है, फायर लग गई है, तो वो पूरी बड़ी बिल्डिंग जो है दैट बिकम्स अ combustible substance. ऐसे केस में पॉसिबल नहीं है कि हम combustible substance को हटा पाएँ. दूसरी चीज़ है कि दूसरा कंडीशन हमने क्या पढ़ा है कंबशन के लिए, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, दैट इज ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना. अगर हम किसी तरह सप्लाई ऑफ एयर को हम कट ऑफ कर दें या ऑक्सीजन की सप्लाई को हम कट ऑफ कर दें, तो भी क्या होगा,
जो हमारा फायर है उसको हम मतलब ख़त्म कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होता है, या तो हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करें, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, दे गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हैवियर देन एयर। तो क्या होता है कि इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, एक ब्लैंकेट की तरह फायर के अराउंड हो जाता है, और उसका कंबस्टिबल सब्सटेंस से ऑक्सीजन का कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से बर्निंग भी ख़त्म हो जाती है। सो दिस वर्क्स वेरी वेल, this fire extinguisher works very well when the fire is due to some electrical और पेट्रोल, कुछ इलेक्ट्रिकल या पेट्रोल की वजह से अगर फायर है तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। वहाँ हम वाटर नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज वाटर से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और पेट्रोल और डीजल आपको पता है क्योंकि हल्के होते हैं, वाटर के ऊपर आ जाते हैं तो तैरने लगते हैं, तो ऐसी फायर को हम नहीं ख़त्म कर सकते वाटर से। तो वहाँ पर हमको ये जो एक्सटिंग्विशर है वहाँ ये यूज़ करना होता है। थर्ड हमको पता है कि हमने थर्ड कंडीशन होती है हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इग्निशन टेम्परेचर। मतलब अगर हमको फायर कंबशन चाहिए तो हम थर्ड कंडीशन क्या है, हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर हम कंबस्टिबल सब्सटेंस को इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने ही ना दें तो भी हमारी फायर रुक सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको सब्सटेंस को कूल डाउन करना पड़ेगा ताकि उसका इग्निशन टेम्परेचर से लोअर इग्निशन टेम्परेचर आ जाए। तो कूलिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली हम वाटर यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा मोस्टली जहाँ पर फायर स्टेशन होते हैं वो वाटर वाले इक्विपमेंट्स उनके पास होते हैं, और वाटर से ही फायर हटाई जाती है। सो नॉर्मली तो क्या करते हैं हम लेकिन और इस तरह से हम फायर इग्निशन टेम्परेचर को नीचे कर देंगे और फायर ख़त्म हो जाएगी। मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ फायर्स ऐसी होती हैं जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में फ़ायर लग गई हो, या फिर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो, ऐसी जगह फायर है, वहाँ पर हम वाटर नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज इट विल कॉज मोर हार्म। जो लोग डाउज कर रहे हैं फायर उनको भी इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकता है अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है, या फिर जो पेट्रोल या डीजल से फायर हुई है वो भी हम नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज इट इज़ लाइटर देन वाटर। तो वहाँ पर भी हम पानी यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हमने जैसे पहले पढ़ा कि वहाँ पर हमको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना पड़ता है। So this is all for today's video. In the next video we will study about more about fire extinguisher, कि fire extinguisher वर्क कैसे करते हैं। आप ये डायग्राम पढ़िएगा और देखिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में भी और बात करेंगे। सो फॉर नाउ यू हैव टू स्टडी द टिल पेज नंबर 83 from the starting of the chapter, or whatever you don't understand we can understand in our Google Meet. Okay, so thank you children.